ટકાઉ અને ઓપ્ટિમમ પેકેજિંગ સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડતું ઇનોવેટિવ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઇન પેકેજિંગે તેની અત્યંત પ્રતીક્ષિત ઇવેન્ટ પેકેજિંગ ફોર ધ બેટર વર્લ્ડ 2024નું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં 300થી વધુ લોકોએ ભાગ લીધો હતો. આ ઇવેન્ટ ટકાઉ પ્રેક્ટિસિસ શોધવા તથા ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન આપવા, પેકેજિંગ ફાઇનાન્સનું સોલ્યુશન લાવવા તથા કિફાયતી પેકેજિંગ સોલ્યુશન્સને પ્રમોટ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ હતી, જેનો લક્ષિત હેતુ પેકેજિંગ ખર્ચને 10થી 50% ઘટાડવાનો હતો. શીશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની પેટા કંપની શીશ ગ્લોબલ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું સાહસ ઇન પેકેજિંગ 5 વર્ટિકલ્સ સાથે પેકેજિંગમાં પરિવર્તન લાવશે. પેકેજિંગ નોલેજ ફોરમ, પેકેજિંગ પ્રોડક્ટ્સ સર્વિસીસ, રેન્ટલ પેકેજિંગ પ્રોડક્ટ્સ, ERP, PWP ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પ્રાઇડ લેબ એન્ડ પેકેજિંગ રેટિંગ વેબસાઇટ તમામ ઉદ્યોગો તથા ક્લાયન્ટ્સને સેવાઓ પૂરી પાડે છે તથા વિવિધ પેકેજિંગ સોલ્યુશન્સ ઓફર કરે છે. ટકાઉપણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઇન પેકેજિંગ ઓપ્ટિમલ પેકેજિંગને પ્રોત્સાહન આપે છે, પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ રિસાયકલિંગ હિમાયત કરે છે અને સર્ક્યુલર ઇકોનોમીના મિશનને સપોર્ટ કરે છે. ફિનિક્સ ફાઉન્ડેશન બામ્બુ ગ્રામના સ્થાપક શ્રી પાશા પટેલ, ભારત સરકારના વાણિજ્ય તથા ઉદ્યોગ મંત્રાલયના રબર બોર્ડના ચેરમેન ડોક્ટર સાવર ધનાણિયા, ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ સેલ ઓફ ગુજરાતના હેડ ડોક્ટર અશ્વિન મિસ્ત્રી, CNBC ટીવીના એડિટર મનીષા ગુપ્તા સહિતના જાણીતા મહેમાનો તથા અગ્રણી હસ્તીઓ તેમજ સભ્યોએ ઇવેન્ટમાં હાજરી આપી હતી, જેમણે ટકાઉ ભવિષ્ય માટે ચર્ચાઓ તથા વ્યૂહાત્મક આયોજનમાં પ્રદાન કર્યું હતું. હું સતીશ માણિયા, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એન્ડ ચેરમેન ઓફ શીશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. આજે અમે શીશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સોલ સબસિડરી શીશ ગ્લોબલ સોલ્યુશનમાં એક inpackaging.com ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં પેકેજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને લગતા બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપવા માટેનું એક પ્લેટફોર્મ છે, જ્યાં પ્રોડક્ટ એન્ડ સર્વિસીસ, ઇન્ફોર્મેશન્સ, ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટીઝ અને EPR અને PWP પર કામ કરવાના છીએ. જ્યાં MSME મેન્યુફેક્ચરર જે પેકેજિંગ પ્રોડક્ટ્સના છે અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર સાથે જોડાયેલા જે યુનિટ્સ છે એ લોકોને એક ફાયદો મળી જશે, જે દરેક પેકેજિંગ પ્રોડક્ટ્સના સોલ્યુશનો એમને ત્યાંથી પ્રોવાઈડ થઈ શકશે. નામ और परिचय. मेरा नाम पाशा पटेल, मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ. एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र का मैं चेयरमैन हूँ और चीफ मिनिस्टर एनवायरनमेंट सस्टेनेबल टास्क फोर्स का मैं सदस्य हूँ. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक MSP पे एक कमेटी बनाई है, 5 किसान उसके सदस्य है, उसमें मैं सदस्य हूँ. और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के गवर्निंग काउंसिल का भी मैं मेंबर हूँ. आज मैं अहमदाबाद में यहाँ पे जो आया हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है. इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं आया हूँ. मुझे खुशी है कि आज तक पैकेजिंग मटेरियल में सस्टेनेबिलिटी का किसी ने सोचा भी नहीं है. सारी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी का विचार शुरू हो गया है. इसका कारण क्या है कि सबके सब ये सस्टेनेबल ये शब्द की ओर जो आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की एक संस्था है, जिस संस्था 198 देश चलाते हैं. ये 1988 से चलती है और इसके 11,000 साइंटिस्ट है और इन्होंने 4,000 पेज का एक रिपोर्ट दिया है. उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 के बाद भावनगर, मुंबई, कोची, चेन्नई, कलकत्ता ये सारे शहर समंदर में डूबने वाले हैं. जब इतने सारे शहर समंदर में अगर डूबेंगे तो बाकी का क्या होगा? तो बाकी ऐसा है कि कुछ पानी में डूब के मरेंगे और कुछ तापमान में जल के मरेंगे. ऐसी सिचुएशन होने वाली है. पानी में क्यों डूबेंगे? इसका कारण है कि कार्बन का प्रमाण 450 ppm अगर हो जाएगा तो दुनिया में जितने भी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है वो सब पिघल जाएंगे और उसका पानी समंदर में आएगा और समंदर का जल स्तर बढ़ेगा. इस वजह से सारी दुनिया का एक बड़ा चेहरा बदलने वाला है, नक्शा बदलने वाला है. और ये अगर नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा? ये अगर नहीं होना है तो कोयला जलाना बंद करना पड़ेगा,
डीजल जलाना बंद करना पड़ेगा और पेट्रोल जलाना बंद करना पड़ेगा और वृक्ष लगाना शुरू करने का। 3 चीज बंद करना पड़ेगा और 1 चीज चालू करना पड़ेगा, तो ही हमारी मानव जात बचने वाली है, वरना बचने वाली नहीं है। इतना बड़ा संकट पृथ्वी पे आया हुआ है। वो कितना कार्बन है अभी? 350 ppm कार्बन होना चाहिए हवा में, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अब हुआ है 422 ppm और दुनिया खत्म होने की दिशा में 450 ppm के बाद ये सब शुरू होने वाला है। तो इससे बचने के लिए सारी इंडस्ट्री कोशिश कर रही है। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी अब सस्टेनेबल का विचार आया है। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, झाड़ तोड़ के पैकेजिंग नहीं करना, ये सारी चीजें अगर सोचना है तो सस्टेनेबल मटेरियल क्या है? तो मेरे हिसाब से बांस एक सस्टेनेबल मटेरियल है। बांस से 1800 चीजें बनती है। बांस ये अतिशीघ्र बनने वाली चीज है। एक कौन सा भी वृक्ष दुनिया में कम से कम 30 साल में बढ़ता है, लेकिन बांस 3 साल में बढ़ता है। तो अतिशीघ्र बनने वाली चीज है ये। और दूसरी मल्टी यूज है, ये बहुउपयोगी है। इससे डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, हेलीकॉप्टर भी बनता है, हेलीकॉप्टर का तेल भी बनता है। अब ये मेरी जो शॉल है, इस शॉल भी बांबू की है, फर्नीचर भी बांबू का है, फ्लोरिंग भी बांबू की है, और आसमान का छत भी बिल्डिंग का ये बांस से बन सकता है। बांस से सब्जी बन सकती है, मुर्रबे भी बन सकता है, राइस भी बन सकता है। और राइस बनाने का जो ये होता है, बर्तन होता है, वो भी बांस का होता है। ऐसे बांस का यूज ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए, और ये होने से सस्टेनेबल मटेरियल मिलेगा, ये बताने के लिए और ये पैकेजिंग इंडस्ट्री को इस चीज की मदद करने के लिए हम आए थे। आज हमारी संस्था का, मेरी फिनिक्स फाउंडेशन नाम की संस्था है, हम बांस में काम करते हैं, बांस के पौधे भी बनाते हैं, और ये इंडस्ट्री को लगने वाला जितना भी रॉ मटेरियल है उतना सारा रॉ मटेरियल देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। ऐसा MOU आज के इस कार्यक्रम में हुआ है। मैं सारी ये इंडस्ट्री को मैं दिल से दुआ देता हूँ कि मानव जात बचाने के लिए हर एक इंडस्ट्री कोशिश करनी चाहिए, और ये पैकेजिंग इंडस्ट्री को कोशिश कर रही है, इसलिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।